स्पाइनल कॉर्ड, वन इज सर्वाइकल एनलार्जमेंट एंड वन इज, वो कैसी हो गई है, वाइड हो गई है सर्वाइकल रीजन में और कहाँ, लंबार रीजन में. क्यों हो गई है? आई वॉन्ट आंसर फ्रॉम योर साइड. यू हैव रेड अपर लिम्ब एंड लोअर लिम्ब, एनी कनेक्शन? स्पाइनल नर्व, सर्वाइकल प्लेक्सस कहाँ से आ रहा है, लंबार प्लेक्सस कहाँ से आ रहा है? व्हाट इज द रूट वैल्यू ऑफ ब्रेकियल प्लेक्सस? C5 to T1. Okay, now see the level of enlargement. Enlargement is from C4 to T2. So one level above and one level below. क्योंकि यहाँ पे उसको ट्रंक के साथ साथ किसको सप्लाई करना पड़ रहा है, लिम्ब को भी सप्लाई करना पड़ रहा है. बिकॉज बाकी तो ट्रंक को तो कर ही रही है उस रीजन में, उसके अलावा किसको कर रही है, लिम्ब्स को. सो बिकॉज इट हैज टू सप्लाई अपर लिम्ब from these root values and lower limb. What is the root value of this femoral nerve? What is the root value of femoral nerve? L2, L3, L4. Ventral rami or dorsal rami? Dorsal rami. Ventral rami goes into which nerve? Obturator nerve. So again see the level of enlargement, because it has to supply the lower limb, so that is why there is a second enlargement at L2 to S3 level, and it is widest at C6 level and widest at S1 level. कुछ 38 मिलीमीटर 35 मिलीमीटर ऐसा डायमीटर जो है वो यहाँ पे होता है. सो दीज आर दी एनलार्जमेंट. ये पिक्चर बहुत ऐसे अच्छा सा दिख रहा था, पर मुझे इसमें एनलार्जमेंट नीचे तो देखो अच्छा दिख रहा है, वाइड दिख रहा है, यहाँ पे लंबार एनलार्जमेंट. ये सर्वाइकल एनलार्जमेंट उतना वाइड पता नहीं लग रहा है. मैक्सिमम एट C6 लेवल एंड देन एट S1 लेवल. सो दीज आर दी टू एनलार्जमेंट्स. So cervical enlargement accommodates motor neurons to supply upper limb muscles. Lumbosacral enlargement is for lower limb muscles. The lower tapering end of spinal cord is known as conus medullaris. So spinal cord extends from medulla to conus medullaris. These are the two enlargements. This is known as conus medullaris, this terminal portion of the spinal cord. Then what else you can make out from this picture? There is a projection also. This projection is filum terminale. It is the continuation of pia mater. We will be seeing to the meninges now. So you know about meninges. So how many cranial meninges you have read? 3. Which are they? Dura mater, pia mater and arachnoid. Spinal cord जब vertebral canal के अंदर है तो क्या वो भी meninges से covered है? So till L1 और till some other level, ये देखना पड़ेगा. So this we have to see कि ये meninges कहाँ है, clinically इनकी क्या importance है, epidural space क्या होता है, because now you can give spinal anesthesia, epidural anesthesia, lumbar puncture करते हैं, तो वो सारे अगर हमें spinal cord तक पहुँचना है या उसकी meninges तक जाना है, then we should know the anatomy of the meninges of spinal cord and spaces also. So now coming to spinal meninges, there are 3 meninges. Dura mater, how many layers were there in dura mater in cranium? 2, periosteal and meningeal layer. Spinal dura mater only has meningeal layer. Okay, it does not have periosteal layer. यहाँ पे ये single layered होता है. Then arachnoid matter and the pia matter. Of course, dura matter is the thickest one. Then arachnoid is avascular one, and pia mater will line each and every fissure, sulcus on the surface of the spinal cord. It will be covering the roots also. So pia mater बहुत closely line करता है. Then dura matter देखो कहाँ तक है. Dura and pia matter they extend up to S2. Now remember this one more level. Till S2, dura matter and arachnoid they extend. Pia matter ends, but its projection filum terminale goes till coccyx. We have seen that projection, so that was a projection from pia mater that was going till coccyx. Now remember this level. So dura mater is ending over here.
The space between spinal dura and vertebral canal is known as epidural space. One more space is also linked to dura, that is subdural space. So epidural space is utilized for giving epidural or spinal anesthesia. It is utilized for giving what? Epidural anesthesia. Have you heard about painless vaginal delivery? That is normal vaginal delivery, but that is painless. Why that is painless? Because the nerves which are supplying the uterus, they are anesthetized, and the substance is given in which space? It is injected into epidural space. In the region, the sacral region, because that supplies the uterus. So epidural or extradural space intervenes between spinal dura and periosteum. It contains what? Remember its contents. These can be asked in your viva, in MCQs also. It contains loose areolar tissue, fat and internal vertebral venous plexus. This is very important. It contains what? It contains a continuous internal vertebral venous plexus. बिल्कुल valveless plexus होता है ये, पूरा foramen magnum से coccyx तक ऐसे extend करता है, and it is communicating externally with the external veins also. So what can happen? Infections, the cancerous things that can be transmitted through that plexus with the help of a Batson's venous plexus. We will be dealing with that, but बस ये याद रखो epidural space में there is an internal vertebral venous plexus, and this fat present in the epidural space, it acts as shock absorber. It provides protection to the spinal cord, and then anesthetic fluid can be injected into epidural space through the sacral hiatus to provide segmental or regional anesthesia. Okay, so अगर हमें यूट्रस को ही सिर्फ ये एनेस्थेटाइज करना है तो पैरासिम्पैथेटिक कहाँ से आ रहा है? S2, S3, S4. तो इन sacral region we will be giving the epidural or spinal anesthesia, and that is given through sacral hiatus. Where is sacral hiatus? sacrum पढ़ लिया तुम लोगों ने? sacrum पढ़ा है? पोस्टीरियर सरफेस देखा है? पोस्टीरियर सरफेस पे एक ऐसा हाइटस है, दैट इज नोन एज सेक्रल हाइटस. दैट इज अ स्पेस थ्रू विच the nerves will be passing. So through the sacral hiatus this anesthetic fluid is injected. Now look at this section, so you will be able to make out everything. This is vertebral body, yes, and these are the foramen transverse areum. This is cervical vertebra, bifid spine ऐसा दिख रहा है, और क्या दिख रहा है? This is vertebral canal. So inside the vertebral canal we have meninges, and then there is spinal cord in the center. Then there are what? There are spinal nerve roots. These are the spinal nerve roots, and you can make out all the meninges in this picture. There is epidural space between the dura mater and the periosteum. Then there is subdural space. ये जो सबसे broad है जिसमें spinal nerve roots दिख रही हैं, ये है कौन सा space? This is subarachnoid space. It is filled with what? CSF, cerebrospinal fluid in continuity. In continuity with above, it is filled in the central canal, but yes, it also contains the subarachnoid. यहाँ पे जो CSF होगा वो किसकी कंटिन्यूटी में होगा? क्रेनियम में जो subarachnoid स्पेस में है. अब क्रेनियम में या ब्रेन में जो वेंट्रिकल्स हैं उनकी कंटिन्यूटी में कौन सा CSF होगा? वो CSF इज प्रेजेंट इन द सेंट्रल कैनाल ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड इटसेल्फ. ठीक है, तो यहाँ बाहर वाला subarachnoid स्पेस जो क्रेनियम में है उसकी कंटिन्यूटी में जो CSF होगा, दैट इज प्रेजेंट इन दिस subarachnoid स्पेस, एंड दीज आर द नर्व रूट्स एंड देन द स्पाइनल नर्व. सो pia mater is there. Pia mater closely ensheathes the spinal cord. Now arachnoid matter, it is a thin, transparent, avascular membrane. It is continuous with the arachnoid matter of the brain. It extends to the level of S2. Remember this thing.
ड्यूरा मैटर लास्ट में पूछूंगी, तो मेरे पास वो MCQs हैं, ये याद रखना ये सारी चीजें। S2 पे एंड हो रहा है। एंड देन देयर इज सब ड्यूरल स्पेस ऑल्सो, कोई कंटेंट ऐसा मुझे इसका मिला नहीं, ऐसा खाली सा है, दिस इज सब ड्यूरल स्पेस। देन कमिंग टू लंबार पंक्चर, वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज दी कॉम्पिटेंसी फॉर इंडियन मेडिकल ग्रेजुएट। मैंने तुम्हारा इंटर्नशिप वाला लॉग बुक देखा है, हर इंडियन मेडिकल ग्रेजुएट जो MBBS है उसको लंबर पंक्चर करते आना चाहिए इंडिविजुअली। ऐसा नहीं है कि मैंने देखा है, असिस्ट किया है, नो, यू शुड नो हाउ टू डू लंबार पंक्चर। कहाँ करेंगे, कैसे करेंगे, वो मैं बता देती हूँ, वहां जाके करना है तुम्हें फिर, ठीक है। तो कहाँ करेंगे, सबसे पहले लंबार पंक्चर करना है एट द बिटवीन L3 एंड L4, ठीक है। जो एरेक्नॉइड है ना, अभी हमने सब एरेक्नॉइड स्पेस देखा ना, स्पाइनल कॉर्ड तो एंड हो गया L1 तक, यानी कि न्यूक्लियाई जो है वो एंड हो गए हैं, अब सिर्फ क्या बची हैं, नर्व रूट्स बची हैं। तो सेफ हो जाते हैं हम कि भाई स्पाइनल कॉर्ड को इंजर नहीं करेंगे। अगर हमें CSF को सिर्फ हमें टेस्ट ही करना, लंबर पंक्चर करके निकालोगे क्या CSF, कौन से स्पेस से निकालोगे, सब एरेक्नॉइड स्पेस से। अब सब एरेक्नॉइड स्पेस हम कहाँ चूज कर सकते थे, ऊपर भी कर सकते थे, नीचे भी कर सकते हैं, तो क्यों ना हम ऐसे लेवल के बाद करें जहां स्पाइनल कॉर्ड एंड हो गया हो। तो सिर्फ अगर इंजर होंगी तो नर्व्स भी होंगी, कम से कम न्यूक्लियाई तो नहीं होंगे, है ना। तो हमने L1 के नीचे, एक और रीजन है यहाँ L3 L4 में करने का, सब एरेक्नॉइड स्पेस एट दिस लेवल इट गेट्स डायलेटेड, और उस स्पेस को या उस डायलेटेशन को अब बोलते हैं स्पाइनल सिस्टर्न, ठीक है। जहां L3 L4 में हम लंबर पंक्चर कर रहे हैं, वहां पे डायलेटेशन किसका है, सब एरेक्नॉइड स्पेस का, उसको हम क्या बोल रहे हैं, स्पाइनल सिस्टर्न। तो यहां से L3 और L4 के लेवल पे करेंगे। कोई मुझे बताएगा, ऐसे ही दिस क्वेश्चन इज आस्क्ड इन वाइवा आल्सो, विच लेयर्स और विच लिगामेंट्स विल कम इन बिटवीन व्हेन यू आर पुटिंग अ नीडल। अब देखो वर्टिब्रा भी है और इंटरवर्टिब्रल स्पेस भी है, तो कहां से जाओगे, वर्टिब्रा से जाओगे, इंटरवर्टिब्रल स्पेस से जाओगे, ठीक है। अब इंटरवर्टिब्रल स्पेस से हम जा रहे हैं, तो क्या क्या लेयर्स आएंगी, पहले तो इंटरवर्टिब्रल स्पेस तक पहुंचने के पहले ही बहुत कुछ आएगा, क्या क्या आएगा, स्किन, देन सुपरफिशियल फेशिया, डीप फेशिया, मसल्स विल बी देयर, पीछे स्पाइनल ये जो मसल्स होंगी, तब कहीं जाके फिर कहाँ पहुंचोगे, इंटरवर्टिब्रल स्पेस में पहुंचोगे, ठीक है। फिर अब कुछ लिगामेंट्स भी आएंगे, तो तुमने वो वर्टिब्रा के साथ में कुछ लिगामेंट्स पढ़े हैं, एंटीरियर स्पाइनल, पोस्टीरियर स्पाइनल, इंटरस्पाइनस, ऐसा पढ़ा? कोई बताना चाहेगा लेयर्स? हम देख लेते हैं क्या क्या लेयर्स हैं। सो दीज लेयर्स विल बी देयर व्हेन somebody is doing lumbar puncture. There is skin, superficial fascia, there will be a supraspinous ligament. ये जो supraspinous ligament क्या है, वो जो spine pointed जैसा दिख रहा है ना, वो पूरा continuous पूरे spines के ऊपर ऐसे supraspinous ligament right from top to bottom ऐसे चलता है। तो this is supraspinous ligament. Then there is interspinous ligament, between the spines also there is an interspinous ligament. Then there is ligamentum flavum. ये क्या है, बड़ा इलास्टिक सा स्ट्रक्चर होता है ligamentum flavum. It connects the two lamina. किसको कनेक्ट कर रहा है, दोनों लमाइने हैं, जो पोस्टीरियर पार्ट है ना वर्टिब्रल कैनाल का, सो लिगामेंटम फ्लेवम जो है वो दो लमाइने को कनेक्ट करता है, बड़ा इलास्टिक सा स्ट्रक्चर है। जब फ्लेवम तक पहुंच जाते हैं तभी तक क्या मिलेगा, बहुत हार्ड है सब कुछ इसके पहले। जैसे ही फ्लेवम में जाते हैं तो ऐसा लगता है कि जैसे गिव अवे वाली फीलिंग आती है कि अब बहुत कुछ सॉफ्ट आ गया। सो व्हेन यू हैव रीच्ड टू दैट सॉफ्ट स्ट्रक्चर, दैट सॉफ्ट स्ट्रक्चर, फर्स्ट सॉफ्ट स्ट्रक्चर इज लिगामेंटम फ्लेवम। दैट मीन्स तुम दो लमाइने के बीच में पहुंच गए हो, ठीक है। फिर लिगामेंटम फ्लेवम के दो लमाइने के बीच में पहुंच गए, मतलब अब कहाँ आ गए, वर्टिब्रल कैनाल में ही आ गए, क्योंकि लमाइना ही बाउंड कर रहा था किसको, वर्टिब्रल कैनाल को। तो अब अगर वर्टिब्रल कैनाल में आ गए तो कौन सा स्पेस आ गया सबसे पहले, एपिड्यूरल स्पेस।
तो अगर सिर्फ एपिड्यूरल स्पेस में ही किसी को एनेस्थीसिया देना है तो एपिड्यूरल स्पेस में पहुंच गए, लेकिन लंबार पंक्चर नहीं, CSF नहीं आया है अभी, सो इट इज कंटेनिंग वर्टिब्रल वीनस प्लेक्सस। देन देयर इज ड्यूरा मैटर। ड्यूरा मैटर तुमने वहां देखा, ये हार्ड फाइब्रस स्ट्रक्चर, अभी न्यूरोएनाटॉमी में और देख लेना, बिल्कुल अलग से पता लगता है। Then there is arachnoid, it is thin vascular membrane, and then there is subarachnoid space that is containing cerebrospinal fluid. So everybody should remember the sequence, and remember phlegm is a weak structure, and then the contents of the vertebral canal, they will be coming in between of the lumbar puncture. So spinal cistern is a wide subarachnoid space lying distal to the termination of spinal cord, and it is extending from L1 to S2 vertebra, and this space is used for draining the CSF. मुझे टाइम बता दो एक बार। हाँ ओके, स्टॉप मी एट 11:45। जो बचेगा वो हम फिर नेक्स्ट क्लास में करेंगे, क्योंकि 11:45 से आई विल बी टेकिंग सम क्वेश्चंस। देन दिस इज यूजुअली परफॉर्म बिटवीन L3 एंड L4 सिंस दिस पार्ट ऑफ द वर्टिब्रल कैनाल इज सेफर एंड ऑल। देन कमिंग टू पाया मैटर, नेक्स्ट जो लेयर है स्पाइनल मेनिंजेस का वो क्या है? पाया मैटर है। अब पाया मैटर जो है that has got 4 modifications in the spinal cord। 4 modifications हैं जो यहाँ पे मिलते हैं हमें पाया मैटर के, उनको भी देखना पड़ेगा। बहुत सारी छोटी छोटी चीजें हैं इसमें, मतलब it makes all these things lengthy। So it is a thin vascular membrane, it goes till where? It goes till coccyx in the form of phylum terminale। The space between pia mater and arachnoid is the subarachnoid space that is filled with CSF. These are the processes or the modifications of the pia mater. One is phylum terminale, second is subarachnoid septum, there is a linea splendens, and then there are ligamentum. Ligamentum denticulatum is singular and ligamenta denticulata is plural. So there are 21 such ligaments, we will be seeing to that। phylum terminale तो यही है कि दिख रहा है ये कोनस मेडुलैरिस से शुरू हो रहा है और कहाँ तक जा रहा है? इट इज गोइंग टिल कॉक्सिक्स। सो इट इज ऑल्सो अ कंटेंट ऑफ द सेक्रल हाइटस से क्या क्या पास होता है ये पूछा जाता है ना, 5th पेयर ऑफ सर्वाइकल सेक्रल नर्व्स अलोंग विद फाइलम टर्मिनेल, तो वो सेक्रम से भी, ये सेक्रल हाइटस से भी पास होगा। फाइलम टर्मिनेल इज अ डेलिकेट वाइट थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, it forms tip of conus medullaris to the 2 first coccygeal vertebra, and it is around 20 centimeter in length and divided into 2 parts, internum and externum। अब ये internum और externum क्या है? L1 से ये शुरू हुआ है और S2 तक जा रहा है, तो ये एक स्पेस के अंदर है। वो क्या है स्पेस? S2 तक क्या क्या और मिलेगा हमें फाइलम टर्मिनेल के अलावा? Subarachnoid space। So till S2 it is inside this not inside the subarachnoid space, but it is surrounded by the subarachnoid space। तो उतना portion from L1 till S2 is known as phylum terminale internum। उसके बाद ये अकेला रह जाता है, then it is known as from S2 to first coccygeal, then it is known as phylum terminale externum। ठीक है, 20 सेंटीमीटर लेंथ है तो 15 सेंटीमीटर इज कवर्ड एंड 5 सेंटीमीटर इज नॉट कवर्ड। सो दैट इज एक्सटर्नम एंड इंटरनम। नाउ सबएरेक्नॉइड सेप्टम क्या है? एक जो पाया मैटर है वो पीछे की तरफ, मतलब पोस्टीरियर टू द स्पाइनल कॉर्ड, इट फॉर्म्स अ सेप्टम which connects the dorsal surface of spinal cord with the arachnoid matter। मतलब इसने क्या करा? एक सेप्टम जैसा बना दिया, एक पार्टीशन बना दिया जो स्पाइनल कॉर्ड का पोस्टीरियर सरफेस किससे कनेक्ट कर रहा है? arachnoid से। so this is the space is subarachnoid but septum is formed by pia mater, so this is known as subarachnoid septum। this is a modification। one more modification, linea splendens। It is a median glistening line made up of pia mater, और ये मिलती कहाँ है? anterior median fissure में। मैं बता दूंगी आगे कि वो linea splendens कहाँ मिलता है। अब ligamenta denticulata कहाँ है? This is very important।
पूरा पाया मैटर जो है वो स्कल बेस से लेके नीचे कॉकिक्स तक, जब हम तुम्हें वो दिखाएंगे ना ग्रॉस स्पेसिमेन, तब तुम देखना 2 रिबन लाइक बैंड्स हैं जो एक्सटेंड कर रहे हैं, स्कल बेस से लेके नीचे तक जा रहे हैं। वो जो रिबन लाइक बैंड्स जो हैं दे आर एक्चुअली द बैंड्स ऑफ द पाया मैटर। अब उसमें से भी कुछ प्रोसेसेस निकलते हैं दोनों साइड, ये टूथ लाइक प्रोसेसेस हैं, इसलिए इन्हें क्या बोल रहे हैं, डेंटिक्यूलेट, दैट मीन्स लाइक टूथ। सो दे आर दीज 21 प्रोसेसेस पूरा ऊपर से लेके नीचे तक स्प्रेड है, ठीक है, पर हैं कितने, सिर्फ 21 है। इनकी they extend laterally between anterior and posterior nerve roots। सर्जन्स के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है जो स्पाइन सर्जरी कर रहे हैं, because they are present in between anterior root and posterior root। तो मान लो अगर तुम्हें कोई posterior root जो है, सिर्फ हमें उसको कॉर्डोटोमी करनी है, मतलब सिर्फ हमें कोई पेन हो रहा था किसी रीजन में जो अनकंट्रोल्ड था, सहन नहीं हो रहा था, तो हमने ये सोचा कि posterior cord carries sensation, so we have to cut only posterior cord, anterior cord को हमें डैमेज नहीं कर रहा है। Because these denticulate ligaments are present between anterior root and posterior root, so by their position we can identify which root is anterior and which is posterior, or you can just locate that. So these extend laterally from between anterior and posterior roots। होते कितने हैं, 21 tooth like processes हैं, ये दिख रहे हैं। ये ऐसा ना पिक्चर बहुत अच्छा नहीं है, मतलब रियल में जब देखोगे तो ऐसे टूथ लाइक दिखते हैं, सब उन्होंने कुछ कुछ बनाया, मुझे लगा इससे ज़्यादा तो ये कंफ्यूज कर रहे हैं। क्या ठीक है, ये नर्व रूट्स हैं, एंटीरियर पोस्टीरियर ऐसे रूटलेट्स। अब इसके बीच में यहाँ देखो, दिस इज डेंटिक्यूलेट लिगामेंट। तो ऐसा एक डेंटिक्यूलेट लिगामेंट है जो पाया मैटर से कहाँ एक्सटेंड कर रहा है, इट विल गो टिल एरेक्नॉइड एंड देन the dura mater also, so it is going like that. Now coming to the external features of the spinal cord, so now what are the external features of spinal cord, कैसा होता है spinal cord, उसमें क्या क्या मिलता है। इसमें हमने कुछ चीजें देख ली हैं, एनलार्जमेंट्स हमने कवर कर लिए हैं, 2 जगह एनलार्ज्ड है, लेवल बताओ चलो, सर्वाइकल एनलार्जमेंट एंड लंबार एनलार्जमेंट। सर्वाइकल एनलार्जमेंट इज फ्रॉम C4 to T2 and lumbar enlargement is from L2 to S3. So this is these are the enlargements, and then there is attachment of spinal nerves also। अब fissures और sulci कहाँ हैं वो देख लेते हैं, एक transverse section देख लेते हैं। So this is the transverse section of the spinal cord। So it is consisting of gray matter and white matter। अब बनाया ऐसा है कि वो अंदर वाला white लग रहा है और बाहर वाला ग्रे लग रहा है, पर ऐसा नहीं है, अंदर वाला क्या है, डार्क है, एंड बाहर इज white matter। Why white matter is white? So remember one thing कि अगर myelinated process है कि किसी न्यूरॉन का, so those myelinated process will be present in the white matter। जितनी भी अनमाइलिनेटेड प्रोसेसेस हैं वो सब कहाँ प्रेजेंट होंगी, ग्रे मैटर में, अलोंग विद द नर्व सेल बॉडी। और कुछ प्रेजेंट होगा ग्रे मैटर में, नर्व सेल बॉडी और हाँ क्या, न्यूक्लियाई इज व्हाट बेटा, ट्रैक्ट, आई विल बी कमिंग टू ट्रैक्ट ऑल्सो। हाँ बेटा, अब तेरा it is a group of cell bodies, so nuclei will be there in gray matter, very nice। along with the neurons जो present है उसके अलावा कोई connective tissue होगा gray matter में, तो neuroglial cells will be there। now second query is tracts are present in white matter। tracts are basically formed by the fibers which are present in the white matter। So very right, nucleus, that means collection of nerve cell bodies will be there in the gray matter, and bundle of fibers which are basically the axons, और वो कैसे हैं, माइलिनेटेड हैं। कहाँ प्रेजेंट है, व्हाइट मैटर में, बाकी सब किस में है, ग्रे मैटर में। अब सरफेस पे और क्या दिख रहा है, ये कुछ ऐसा डिवाइडेड सा दिख रहा है। सो दिस एंटीरियर fissure is known as anterior median fissure। it is dividing the
spinal cord into two halves anteriorly and posteriorly there is, देखो anterior वाला जो fissure है वो बहुत deep दिख रहा है, posterior में ऐसा कुछ लग नहीं रहा, बस ऐसा लग रहा है एक line सी है. So posterior one is known as, that is not deep actually, that is known as posterior median sulcus. ऐसे ही, क्योंकि तुम्हें क्या करना है वहाँ DH में एंटीरियर सरफेस और पोस्टीरियर सरफेस आइडेंटिफाई करनी है. तो एंटीरियर सरफेस पे देखोगे दोनों हाफ्स कैसे हैं, अच्छे से डिवाइडेड हैं, बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ एंटीरियर मीडियन फिशर. पोस्टीरियरली देयर इज अ पोस्टीरियर मीडियन सल्कस. अब अगर दोनों हाफ डिवाइडेड हो गए तो ऐसा भी नहीं है, दोनों को कनेक्ट करना भी जरूरी है. सो देयर विल बी कमिश्चर्स ऑल्सो. एक पूरा जो ग्रे मैटर का सेक्शन है दैट इज इन द फॉर्म ऑफ एच, और दोनों साइड का जो ग्रे मैटर है दैट इज कनेक्टेड बाय दिस कमिश्चर. दिस इज नोन एज ग्रे कमिश्चर. ये क्या है, ग्रे कमिश्चर. बीच में और क्या प्रेजेंट होगा, देयर इज अ सेंट्रल कैनाल. वो सेंट्रल कैनाल में से क्या पास होगा, CSF विल पास थ्रू दैट सेंट्रल कैनाल. एंड देन देयर, तो व्हाइट मैटर कनेक्टेड नहीं है कहीं भी, ऐसा नहीं लग रहा ना कि व्हाइट मैटर कनेक्टेड है. व्हाइट मैटर इज ओनली कनेक्टेड एंटीरियरली. सो देयर इज ओनली एन एंटीरियर व्हाइट कमिश्चर. व्हाइट मैटर इज नॉट कनेक्टेड पोस्टीरियरली. पोस्टीरियरली दैट इज विल बी सेपरेटेड बाय posterior median sulcus. So broadly these are the external features. Two more things also. There are two anterolateral fissures and two posterolateral fissures. कोई बताएगा उसमें से क्या पास होगा? दो एंटीरोलेटरल फिशर्स भी हैं जो दिख नहीं रहे हैं, पोस्टीरोलैटरल अच्छे दिख रहे हैं. यहाँ से क्या पास होगा या क्या कनेक्ट होगा? हाँ हाँ, हॉर्न कनेक्ट होंगे. हॉर्न में से क्या कनेक्ट होता है आगे जो बाहर निकलेगा या अंदर है? सेंसरी एंड मोटर रूट्स. सो देयर आर टू एंटीरोलेटरल फिशर्स एंड टू पोस्टीरोलेटरल सल्कस, एंड वहां पे क्या अटैच्ड हैं, वो नर्व रूट्स जो हैं दे आर अटैच्ड. सो ब्रॉडली दीज आर दी फीचर्स. टू एंटीरोलेटरल फिशर, टू पोस्टीरोलेटरल सल्काई. एंटीरोलेटरल वाले मुझे तो दिखे ही नहीं इस पिक्चर में, ये जरूर दिख रहे हैं, ये दिख रहे हैं ना. और ये एंटीरियर मीडियन फिशर है, ये पोस्टीरियर मीडियन सल्कस है. एंटीरियरली देयर इज अ वाइट कमिश्चर, पोस्टीरियरली देयर इज नो कनेक्शन बिटवीन द वाइट फाइबर्स. दिस इज द स्पाइनल कॉर्ड. ये भी है, इसमें कितनी स्पाइनल नर्व्स हैं? 31 पेयर्स. एक टर्म आता है स्पाइनल सेगमेंट. So segment of the spinal cord which gives rise to a single pair of spinal nerve is known as spinal segment. ये क्यों important है? स्पाइनल सेगमेंट और वर्टिब्रल सेगमेंट अलग अलग हो जाते हैं. हम नहीं कह सकते कि भाई T1 जो स्पाइनल सेगमेंट है वो T1 वर्टिब्रा पे प्रेजेंट होगा, ऐसा नहीं है ना, क्योंकि वो तो रह गई छोटी स्पाइनल कॉर्ड. और वर्टिब्रल सेगमेंट्स जो कैसे हैं, वो फैले हुए हैं, they are till coccyx. So there are 31 spinal pair of spinal nerves, and these are the nerve roots, motor root and sensory root. So length of spinal cord giving origin to the rootlets of one spinal nerve on both sides constitute one spinal segment. They do not correspond with the vertebral segment. अब इसको याद रखने के लिए 11:45 हो गई क्या? ये बस देख लो लास्ट क्या है कि कैसे याद रखेंगे. सर्जरी करने के लिए तो याद रखना ही पड़ेगा कि सर्वाइकल सेगमेंट कौन सा कहाँ मिलेगा और लंबार सेगमेंट क्या. तो सर्वाइकल रीजन में एड 1 टू दी स्पाइनस प्रोसेस. मतलब अगर हम बोल रहे हैं कि 4th सर्वाइकल स्पाइन पे कौन सा स्पाइनल सेगमेंट मिलेगा, 5th सर्वाइकल स्पाइनल सेगमेंट मिलेगा. बात समझ आ रही है? ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि फर्स्ट जो सर्वाइकल नर्व है वो फर्स्ट सर्वाइकल वर्टिब्रा के ऊपर से जा रही है कि नीचे से जा रही है? ऊपर से जा रही है. सो दैट इज व्हाई वी हैव टू ऐड 1 टू द स्पाइनल सेगमेंट, to the vertebral segment to get the spinal segment. There are 8 cervical nerves. So we have to add 1 to the spinal to the vertebral segment to get the spinal segment. अब upper thoracic region में क्या add करना होगा? 2 to the number of spinous process. मान लो अगर T4 spine है तो वहाँ पे कौन सा thoracic segment मिलेगा? T6. अब एक और बढ़ गया है. फिर लोअर रीजन, लोअर thoracic region में we have to add 3.
मतलब 7th अगर thoracic spine है तो 10 thoracic spinal segment मिलेगा। ये हमारी बुक में टेबल दे रखा है। 11 thoracic spine पे 4 ऐड करना होगा, 12th में 6 ऐड करना होगा, और फर्स्ट लंबार पे all other segments of the spinal cord will be there. So it is like 1, 2, 3, 4 and 6. 1 will be added to cervical segment, 2 will be added to upper thoracic, 3 will be added to lower thoracic, 4 will be added at T11, 6 will be added at T12, और उसके नीचे फिर L1 पे जो है वो बाकी के segments मिल रहे हैं। So this way we can make out. I'll stop here and we will be dealing with the tracts and other things tomorrow. अब